لاسٹ کچھ ویڈیوز میں ہم نے لینگویج لرننگ تھیوریز کے بارے میں بات کی کہ کس طرح بی ایف اسکنر اور نوم چومسکی نے اپنی اپنی لینگویج لرننگ تھیوریز پیش کی۔ ان تھیوریز کے پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی لینگویج کو اتنی جلدی اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ کس طرح سے سیکھ لیتا ہے، کیونکہ ہم بڑے جب کسی لینگویج کو سیکھتے ہیں تو ہمیں اس کو سیکھنے میں بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے، بہت ہی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہم اس میں اتنی پرفیکشن حاصل نہیں کر سکتے جتنا ایک چھوٹا بچہ اپنی فرسٹ لینگویج کو سیکھنے میں پرفیکشن حاصل کرتا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جب ہم یہ جان جائیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی فرسٹ لینگویج کو کس طریقے سے سیکھتا ہے تو ہم اسی میتھڈ کو یوز کر کے سیکنڈ لینگویج کو بھی سکھائیں گے، تاکہ ایڈلٹس اپنی سیکنڈ لینگویج میں بھی اتنی ہی پرفیکشن حاصل کر سکیں جتنی پرفیکشنز ان کی اپنی فرسٹ لینگویج میں ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی لینگویج لرننگ یا لینگویج ٹیچنگ میتھڈز کے بارے میں بات کریں گے اور لینگویج لرننگ میتھڈز کی ٹائم لائن کو کرونولوجیکلی ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ کو اچھے سے پتا چل جائے کہ ہسٹری میں لینگویج لرننگ میتھڈز کس طرح سے ڈیولپ ہونا شروع ہوئے اور آج اس دور میں کون کون سے لینگویج لرننگ میتھڈز موجود ہیں اور کون سا لینگویج لرننگ میتھڈ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے، تاکہ آپ اس اسپیسیفک لینگویج لرننگ میتھڈ کے تحت اپنی سیکنڈ لینگویج یا انگلش کو سیکھیں، یا جو بھی سیکنڈ لینگویج آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اچھے طریقے سے امپروومنٹ لا سکیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ I'm Simab Shirazi and you are taking a class of applied linguistics۔ تو دوستو، کہانی کا آغاز ہوتا ہے ارلی 16th سینچری سے، جب لیٹن اور اینشینٹ گریک جیسی لینگویجز ڈیڈ ہو چکی تھیں، لیکن وہ اپنے لٹریچر میں اتنا کچھ چھوڑ کے گئی تھیں کہ بڑے بڑے رائٹرز بھی لیٹن گریک کو سیکھنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ اس وقت کے رائٹرز لیٹن اور اینشینٹ گریک کو سیکھ کے ان کے لٹریچر میں موجود جو اچھی بکس ہوتی تھیں ان کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے، تاکہ عام لوگ بھی ان بکس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے کہ الیگزینڈر پوپ اپنی ایج کے سب سے بیسٹ پوئٹ تھے، لیکن وہ پوئٹ کے ساتھ ساتھ ایک ٹرانسلیٹر بھی تھے، اور انہوں نے ایک اینشینٹ گریک پوئٹ ہومر کی ایک بک ایلیاڈ کو اپنی انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس وقت جو رائٹرز لیٹن اور اینشینٹ گریک سیکھتے تھے وہ اس کو بولنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو ٹرانسلیشن کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے سیکھتے تھے۔ ایسا ہی چلتا رہا، اور جب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد لوگوں کا ایک دوسرے کے ممالک میں آنا جانا بہت ہی زیادہ بڑھتا گیا تو سیکنڈ لینگویج کو سیکھنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ جیسا کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد لنڈن ایک کافی ڈیولپڈ سٹی بن چکی تھی، تو کافی لوگ ہجرت کر کے لنڈن آ رہے تھے، اور جو غیر ملکی لوگ ہجرت کر کے لنڈن آتے تھے انہیں پھر انگلش لینگویج سیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو 1840 کے آس پاس اسی پرانے میتھڈ جس کے تحت ڈیڈ لینگویجز کو سکھایا جاتا تھا، اسی میں ذرا سی کمی بیشی کر کے ایک نیا میتھڈ کریٹ کیا گیا جسے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا نام دیا گیا، اور پھر اس میتھڈ کے تحت لوگوں کو انگلش سکھائی جانے لگی۔ اب کیونکہ جو پرانے رائٹرز لیٹن اور اینشینٹ گریک اس میتھڈ کے تحت سیکھتے تھے وہ پھر ان لینگویجز کو بولتے تو تھے نہیں، بولتے تو وہ اپنی لینگویجز میں تھے، لیکن یہاں پہ ان لوگوں کو بھی ایک لیونگ لینگویج یعنی انگلش اسی سیم میتھڈ کے تحت سکھائی جانے لگی جس طرح سے وہ پرانے لوگ ڈیڈ لینگویجز کو سیکھ رہے تھے۔ بہرحال لینگویج ٹیچنگ کا کیونکہ یہ ایک ہی اکلوتا میتھڈ تھا، اسی لیے یہ میتھڈ کافی زیادہ ہٹ رہا اور بہت سارے اداروں نے اس کو ڈیولپ کیا اور اس میتھڈ کے تحت انگلش سکھائی جانے لگی۔ تقریباً ایک سینچری تک یعنی 1840 سے 1940 تک یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ اپنی پیک پہ رہا، لیکن 1940 کے بعد آخرکار اس میں سے کمیاں نکلنے لگیں، لوگوں کو اس میں کمیاں نظر آنے لگیں اور لوگ ایک نئے میتھڈ کی ضرورت محسوس کرنے لگے، کیونکہ اس میتھڈ کے تحت سیکھنے والے اسٹوڈنٹس اپنی سیکنڈ لینگویج کو اتنے اچھے سے نہیں بول پاتے تھے اور نہ ہی وہ اس لینگویج کو اتنے اچھے سے سمجھ پاتے تھے۔ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کے تحت جو اسٹوڈنٹس انگلش سیکھتے تھے وہ انگلش کو پڑھنا، لکھنا اور انگلش کو اپنی لینگویج میں اور اپنی لینگویج کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا تو اچھے سے کر لیتے تھے، لیکن انہیں بولنے میں ابھی بھی ڈیفیکلٹی کا سامنا تھا، ان کا ایکسنٹ صحیح نہیں تھا اور ان کو پراپر انگلش پیپل یعنی نیٹیوز کی لینگویج بھی صحیح سے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تو ان کمیوں کی وجہ سے ایک نئے میتھڈ کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ نیا میتھڈ جا کے بنا 19 سینچری کے اینڈ میں۔ اس نئے میتھڈ کا نام ڈائریکٹ میتھڈ رکھا گیا، جو کہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں جو کمیاں تھیں ان کمیوں کو خاص طور پر مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ مثلا گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں صرف ریڈنگ اور رائٹنگ پہ زیادہ فوکس تھا اور اسپیکنگ اینڈ لسننگ پہ کم، تو یہاں مین فوکس لسننگ اور اسپیکنگ پہ رکھا گیا اور ریڈنگ اور رائٹنگ کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔
इस मेथड यानी डायरेक्ट मेथड में लैंग्वेज इस तरीके से सिखाई जाती थी कि उसका सारा का सारा फोकस कम्युनिकेशन पर ही होता था, यानी कि एक बंदा सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से बात करने के काबिल हो जाए, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड उसको सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से बातचीत करने के काबिल नहीं बना पा रहा था। अब ये लैंग्वेज मेथड जब नया नया बना तो ये भी काफ़ी हिट रहा, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने इसको अडॉप्ट किया और इसी मेथड के तहत सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाने लगी। तकरीबन 30 साल तक ये मेथड अपनी पीक पे रहा, यानी 1900 से लेके 1930s तक इस मेथड का पीक टाइम था। लेकिन 1930s के बाद इस मेथड में भी कमियां निकलनी शुरू हो गईं। अब इस मेथड में क्या कमियां निकली, क्योंकि ये मेथड तो ऑलरेडी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कमियों के ऊपर बनाया गया था। तो इस डायरेक्ट मेथड की कमी यही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की कमियों के ऊपर फोकस करके बनाया गया था और इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो खूबियां थी उनको इग्नोर कर दिया गया था, यानी रीडिंग एंड राइटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। इस मेथड के तहत जो स्टूडेंट्स लैंग्वेज लर्न करते थे वो लैंग्वेज को अच्छे से बोलना तो सीख रहे थे और लैंग्वेज को अच्छे से समझ भी पा रहे थे, लेकिन उनकी रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेटिंग स्किल्स बिल्कुल ही बिगिनर्स लेवल की थी, क्योंकि इस मेथड के तहत इन स्किल्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया था। अब इससे पहले कि ग्रामर ट्रांसलेशन और डायरेक्ट मेथड दोनों की कमियों को दूर करके कोई और अच्छा सा बेहतरीन सा मेथड बनाया जाता, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। अब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका को अपने सोल्जर्स को काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज़ में भेजना पड़ा ड्यूटी के लिए। तो जो सोल्जर्स ड्यूटी करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे थे उन्हें उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती थी, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरह की शिकायत जब गवर्नमेंट को मसूल हुई तो यूएस गवर्नमेंट ने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को ऑर्डर दिया कि जल्द अज जल्द कोई अच्छा सा लैंग्वेज लर्निंग मेथड क्रिएट किया जाए, जिसके तहत इन सोल्जर्स को जल्द अज जल्द सेकंड लैंग्वेज में बेसिक बातचीत करने के काबिल बनाया जा सके। तो फिर यूएस गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक 1942 में आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया और इस प्रोग्राम के तहत आर्मी पर्सनल्स को सेकंड लैंग्वेज सिखाई जाने लगी। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि इस आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आर्मी पर्सनल्स को सेकंड लैंग्वेज की सिर्फ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी, यानी उन्हें सेकंड लैंग्वेज की बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर, बेसिक सेंटेंसेस, यानी किसी के साथ सलाम दुआ करना, ग्रीटिंग करना या शॉपिंग करना या इस तरह के सेंटेंसेस जिनसे बंदे का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमना सामना होता है, इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती थी, ताकि वो बंदा जब किसी दूसरी कंट्री में डिप्लॉय हो तो वहाँ पे वो एटलीस्ट इस काबिल हो कि वहाँ पे वो किसी के साथ ग्रीटिंग्स कर सके, उसको अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो वो किसी से मांग सके वगैरह वगैरह। तो इस प्रोग्राम का मकसद प्रॉपर लैंग्वेज सिखाना बिल्कुल भी नहीं था। वैसे ये प्रोग्राम काफ़ी हिट रहा और इसकी वजह से आर्मी पर्सनल सेकंड लैंग्वेज की बेसिक्स को जल्दी सीखने लगे। अब इसके कुछ ही अरसे बाद 1940s में ही BF स्किनर ने अपना ओपेरेंट कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट पब्लिकली करके दिखाया और साबित किया कि उसकी थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म ट्रू है, यानी कि बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट के ज़रिए सीखते हैं। अब ये बिहेवियरिज्म, कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट क्या है, इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, तो दोबारा से उन सब चीज़ों को दोहरा के मैं इस वीडियो को खामखा में लंबा नहीं करना चाहता। अगर आपको बिहेवियरिज्म के कंसेप्ट के बारे में नहीं पता तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब बिहेवियरिस्ट थ्योरी लोगों के दिमागों पे पूरी तरह गालिब हो गई, यानी कि उसका क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इस बिहेवियरिस्ट थ्योरी और आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम को बेस बना के 1940s के एंड में एक नया लैंग्वेज टीचिंग मेथड बनाया गया, जिसे ऑडियो लिंगुअल मेथड बोला गया। बिहेवियरिज्म की ही तरह इस ऑडियो लिंगुअल मेथड ने भी 1950s में बहुत ही ज़्यादा उरूज हासिल किया और ये आने वाले कई साल एजुकेशन की फील्ड में गालिब रहा। लेकिन फिर 1950s के एंड में एंट्री हुई नोम चॉम्स्की और उसकी यूनिवर्सल थ्योरी की, जिसके तहत उसने बिहेवियरिज्म को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया और उसके इस क्रिटिसिज्म की वजह से बिहेवियरिज्म के साथ साथ इस ऑडियो लिंगुअल मेथड की भी फेम डाउन होना शुरू हो गई, क्योंकि चॉम्स्की ने काफ़ी वैलिड पॉइंट्स के साथ इनको क्रिटिसाइज किया था, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद बिहेवियरिज्म और इस ऑडियो लिंगुअल मेथड से उठ गया। अब एक बार फिर से किसी अच्छे लैंग्वेज लर्निंग मेथड या लैंग्वेज टीचिंग मेथड की ज़रूरत महसूस होने लगी। तो ये ज़रूरत आखिरकार जाके पूरी हुई 1970s में। नोम चॉम्स्की के इस क्रिटिसिज्म को और पिछले तीनों लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स की खामियों को मद्देनज़र रखते हुए 1970s में जाके बना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड।
अब इस मेथड का मेन गोल क्या था? तो इस मेथड का मेन गोल ये था कि इस मेथड के ज़रिए सेकंड लैंग्वेज सीखने वाले स्टूडेंट्स सेकंड लैंग्वेज में अपनी कोई भी बात किसी नेटिव को समझा सकें। यानी जिस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का फोकस ये था कि स्टूडेंट्स के सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए, 100% करेक्ट। तो इस टीचिंग मेथड में इस चीज़ पे फोकस नहीं किया गया, बल्कि इस चीज़ पे फोकस किया गया कि 100% अगर करेक्ट नहीं भी हैं तो भी बंदे को कॉन्फिडेंटली सेकंड लैंग्वेज बोलना आना चाहिए, और वो सेकंड लैंग्वेज को कम अज़ कम इतना अच्छा तो बोले कि किसी भी नेटिव की बात को समझ सके और उस नेटिव को अपनी बात समझा सके। वो अगर ग्रामर में हल्की फुल्की सी मिस्टेक कर भी देता है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको कम अज़ कम उनके साथ बातचीत करने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। ये मेथड सबसे ज़्यादा कामयाब रहा, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका गोल यही था कि वो कम अज़ कम किसी नेटिव की बात को समझ सकें, उसके साथ बात कर सकें। या आजकल के स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को या तो इस वजह से सीखते हैं क्योंकि वो मूवीज़ को एंजॉय कर सकें, या फिर इस वजह से सीखते हैं कि उनके फेसबुक वगैरह पे जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं उनके साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये लैंग्वेज टीचिंग मेथड उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ। और आज भी इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में CLT को ही एक स्टैंडर्ड टीचिंग मेथड के तौर पर माना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक इतना अच्छा और एक नियरली परफेक्ट लैंग्वेज टीचिंग मेथड मिल गया तो उसके बाद तो कोई और लैंग्वेज मेथड्स नहीं बने होंगे। तो ऐसा नहीं है, कोशिशें फिर भी जारी रहीं और काफ़ी सारे नए मेथड्स भी बनाए गए, जिनमें से कुछ फ्लॉप हुए और कुछ काफ़ी अरसे तक डोमिनेट रहे, यानी काफ़ी फेमस हुए। इसी तरह के दो मेथड्स 1990s में आए। एक टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड था और फिर इसके रिस्पॉन्स में एक कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड आया। टास्क बेस्ड मेथड बिल्कुल कम्युनिकेटिव मेथड की तरह था, या डायरेक्ट मेथड की तरह भी कह सकते हैं, कि जिसमें फोकस बातचीत पे होता था और स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज में नॉर्मल बातचीत करना टास्क्स के थ्रू सिखाया जाता था। यानी उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता, मिसाल के तौर पे उनको शॉपिंग का टास्क दिया जाता, और इस टास्क को प्रैक्टिकली करवाने से पहले उनको शॉपिंग के बारे में सेंटेंसेस सिखाए जाते, उनको शॉपिंग से रिलेटेड वोकैबुलरी सिखाई जाती और फिर उनको प्रैक्टिकली शॉपिंग के लिए भेजा जाता और वो प्रैक्टिकली शॉपिंग करते और उसी सेकंड लैंग्वेज में बातचीत करते हुए अपना ये सारा टास्क कंप्लीट करते। इसी तरह उनका पूरा का पूरा सिलेबस डिफरेंट टास्क की ही सूरत में बनाया जाता। ऑन दी अदर हैंड कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो था उसमें टास्क्स की बजाय कंटेंट को मेन चीज़ बोला गया, यानी कि बच्चों का जितना भी एकेडमिक कंटेंट है उसको सेकंड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो यानी उनको सेकंड लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में जैसे कि बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या हिंदी होती है और उनको सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश सिखानी है, तो उनका एकेडमिक कंटेंट सारा का सारा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी कि उनको सिर्फ इंग्लिश की एक बुक ना पढ़ाई जाए, बल्कि उनको साइंस भी इंग्लिश में पढ़ाई जाए, उनको मैथ्स भी इंग्लिश में पढ़ाई जाए, उनको सोशल स्टडीज़ भी इंग्लिश में पढ़ाई जाए। नेज़ उनका जितना भी एकेडमिक करियर है वो सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ें, ताकि वो इस सेकंड लैंग्वेज को भी बहुत ही अच्छे से पिक करें, बिल्कुल ऐसी ही परफेक्शन के साथ जैसे वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को पिक करते हैं। तो आजकल के ये जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं ये बेसिकली कंटेंट बेस्ड टीचिंग ही करते हैं। उसके बाद आखिर में आता है कंप्यूटर असिस्टेड एंड मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग मेथड। ये 2000s के बाद जब कंप्यूटर्स आम हो गए तो कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए गए और लोगों को उन सॉफ्टवेयर्स के तहत लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दी गई। सेम इसी तरह जब 2010s में मोबाइल और ये स्मार्टफोन्स अब बहुत आम हो चुके हैं तो लोग मोबाइल की ऐप्स के थ्रू लैंग्वेज सीखते हैं, तो इसको मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग कहेंगे। इसी तरह इसकी एक और सब फील्ड गेमिफिकेशन है, यानी कि गेम्स के ज़रिए लैंग्वेज लर्निंग करना। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर बहुत सारी ऐसी गेम्स मिल जाती हैं जिनके थ्रू स्टूडेंट्स लैंग्वेज को लर्न करते हैं, यानी कि वो एक तरह से गेम खेलते हुए एंजॉय करते हैं और उस एंजॉय करने के साथ साथ वो सेकंड लैंग्वेज को भी लर्न कर रहे होते हैं। तो ये आज की सूरत हाल है। इसके बाद आगे चल के लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स कितनी और तरक्की करेंगे ये तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो AI भी आ चुकी है और AI बहुत ही तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। तो आगे चल के और कौन कौन से नए लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स आएंगे इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल स्टूडेंट्स की नीड्स और गोल्स के हिसाब से ये कुछ लैंग्वेज लर्निंग मेथड्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसी किसी स्टूडेंट की नीड होगी वो उस तरह के लैंग्वेज टीचिंग मेथड से लैंग्वेज को लर्न करे तो उसको अपने गोल्स अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी।
अगर किसी स्टूडेंट ने कोई लैंग्वेज सिर्फ रीडिंग या राइटिंग या ट्रांसलेशन के लिए सीखनी है तो उसके लिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर किसी ने नेटिव से बातचीत करने के लिए लैंग्वेज को सीखना है तो उनके लिए कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। तो इस चीज़ का इन्हिसार स्टूडेंट्स की नीड पे है कि वो किस तरह का लैंग्वेज लर्निंग मेथड अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फन फैक्ट बताता चलूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में अभी भी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही यूज़ हो रहा है। अब इतना पुराना और सबसे पहला और सबसे बेसिक मेथड जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, आज भी पाकिस्तान और इंडिया में वही क्यों यूज़ हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री में मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।